Okay, so what we had discussed earlier, we had gone with the background color property, then we gone with the different border property, then transform, transition, then we had looked over how we can put delay, these all thing, then main thing gradient. Okay, and yesterday we had looked over the variable. So I will go one time more with the variable thing, but I will not go more coding, just we will see overview, because now whatever project or anything you are using in the CSS, try to use the variable. Okay, even when you writing code in your exam or anywhere, use variable. Don't think that they will reduce the mark, they will give more important, they will, it will be good actually, that is the case. That's why I telling use variable actually. Okay, so now you can observe here what we had done with the help. And one thing, how we can declare global variable with the help of what, with the help of root. What is that actually, this root, anyone can tell what is this one? Pseudo class. Pseudo class, correct or not? So two things we had studied. In the selector case, we had studied two things. One was pseudo class, another was pseudo element. Correct? So in class, we was giving single colon. In sorry, what is that? Colon itself. Yeah, correct. So single colon, and in the case of element, we giving two time colon. Means that is proportion. Correct? So this is your pseudo class. So in the case of the variable declaration, you have to provide within the selector, that is pseudo class, and this whatever variable you will declare in root, means pseudo class, that will comes under the global variable. Clear? So now if suppose now anywhere if you want to use this variable, you can use the variable name and you can proceed. But the thing is that I want to create our variable, means in the sense local variable. This become your global variable. If you want to create local variable, you can create that local as well. So how we can create the local? You can see here somewhere it will be. Okay, it may be in the second example. Yeah. So you can see here how we can create. You can create with same time, same type as you created that global variable. But in case of global variable, what we had done, we had written inside the root selector. But in case of local variable, no need to put inside the root selector, that we can write inside the class or tag or ID, whatever. However, in whatever way we are going to target that HTML element. So that we have to point out here. So now, but the thing is that if we are taking the same variable name in the local and same variable name in the global, now tell me one thing, which variable will be effective? Two variable is there, global and local. If we created one local variable and one variable is available in the global case, so which one will effective? Local. Why? Because local have more priority, you can tell, or preference. Fine. So local will get effective. Anyone having issue in English? Then I can go in Hindi as well. If anyone have, then Sir, Hindi is better. Hindi is better. Yes, sir, because understanding not an problem. Okay. Okay. But actually the scene is that na, in interview that will be the problem. Okay. Anyway. So जब आप ग्लोबल वेरिएबल में अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल को अगर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सेम अगर हम उसे लोकल में क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा प्रेफरेंस किसको जाएगा? लोकल को पहले जाएगा, क्योंकि लोकल का आउटपुट हमें क्या होगा? पहले मिल जाएगा ग्लोबल के बदले में। तो ग्लोबल एंड लोकल में दोनों में क्या होना चाहिए? सेम वेरिएबल नेम होना चाहिए, तब आपको वो दिखेगा कि इफेक्ट उसका क्या हो रहा है। ठीक है, सो वेरिएबल के केस में बस इतना ही था। ये आपको बॉक्स, ये क्या है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, हम लोग इसका सेपरेट टॉपिक भी देखेंगे, तो वहां समझेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं मीडिया क्वेरी। सो कोई भी वेबसाइट अगर हमें रेस्पॉन्सिव बनाना है, तो कुछ उसमें जो पार्ट है मीडिया क्वेरी पार्टिसिपेट करके वो हेल्प कर देगा आपको। नेक्स्ट पोजीशन है, ग्रिड है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये सब अवेलेबल है। सो हम लोग मीडिया क्वेरी देखते हैं। सो मीडिया क्वेरी यस्टरडे आल्सो वी हैड सीन। ओके, सो मीडिया क्वेरी में क्या होता है, हमें वहां पे
स्क्रीन रिजोल्यूशन देना पड़ता है कि कितने रिजोल्यूशन पे हमें वर्क कराना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है @मीडिया, और इसके अंदर क्या है, नॉट और ओनली, दो चीजें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मीडिया टाइप एंड एक्सप्रेशन, और इसके अंदर आप CSS का कोड जो भी चीज पास करना चाहते हैं सारा लिख दीजिए। नेक्स्ट आते हैं मीडिया को एग्जाम्पल पे देखते हैं पहले। सो यहाँ पे क्या है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि स्क्रीन साइज जब 480 हो, ठीक है, मीन्स बाय डिफॉल्ट हमारा बॉडी का स्क्रीन कलर क्या रहेगा, लेट मी कॉपी कोड। देखिए लेकिन हिंदी का ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट ट्राई कीजिए इंग्लिश को हैबिट लाने का, क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो ना, और अगर आपको कोई मिल गया यूएस वगैरह का, तब फिर आपको समझ में आएगा, उसका इंग्लिश समझना कर बहुत। लेते हैं, फिर एग्जाम तो खत्म ही हो गया, कल से कर लेते हैं। कितने लोग करते हैं जीडी, आप ही देखे हैं? यहाँ यहाँ मैं तो एक्चुअली मैं यही देखता हूँ कि गिन के 2 से 3 लड़के जो हैं एक्टिव रहते हैं। अभी देखिए एक चीज, ये ग्रुप में कितने मेंबर हैं, टोटल 26 दिखा रहा है लिस्ट, कितने ज्वाइन है, 10। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग नहीं है। चलिए आकाश को हटाइए, अमरजीत यहाँ नहीं है, दिव्या हटाइए, ये गेस्ट यूजर कौन है, ये दो, ये जो भी है मैं रिमूव करूंगा आज सारा। वो जो एब्रॉड के नहीं थे सर, वो उनका है। नहीं उनका नहीं है, उनका ये है नाजिद हुसैन करके जो है, ये जाहिद हुसैन, वही मान लिया था सर, शायद हो सकता है उस दिन गेस्ट यूजर। वही ठीक किए है, थे सर उस बार तो। ओके, तो यहाँ पे एक मतलब मान लीजिए ये हो गए। सोनू, मैंने एग्जाम के बाद और एग्जाम के पहले भी नहीं देखा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या है, ये मैं सोच रहा हूँ रिमूव करूंगा कुछ दिन में, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, भी ध्यान नहीं है। नेक्स्ट रविशंकर, ये तो अवेलेबल थे। ठीक है, नेक्स्ट राहुल, राहुल तो इसमें से एक राहुल दिखता है, दूसरा राहुल का तो आता पता ही नहीं। नेहा, चलिए उस बैच की है। सरफराज, मकसूद, कुणाल का तो रहते हैं ये, ठीक है। फिर ये 2 लड़के हो गए, सरफराज मकसूद, कोई पता नहीं है एग्जाम के बाद, अब तो एग्जाम भी नहीं है ना, या अभी एग्जाम है, एग्जाम फिनिश हो गया, खत्म हो गया ना, लेकिन अभी भी कोई पता कब खत्म हुआ एग्जाम, मैं भी 23, तो भाई आज तो 28 हो गया। ठीक है, जो भी मर्जी हो, हम किसी को फोर्स नहीं करने जा रहे हैं। आप ही देख लिए यहाँ पे 3-4 जो है उनका कोई अता पता नहीं है, तो ये लोग थोड़ी आपको लग रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो वो इंटरव्यूअर जो है आपका रिश्तेदार है कि वेलकम करेगा। बट ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए देखिए, प्रोजेक्ट पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट पे फोकस कीजिए, इंग्लिश पे फोकस कीजिए, नहीं कीजिएगा इंटरव्यू में फेस करना होगा। आप चाहे फाइनल ईयर में कंप्लीट कीजिए या फाइनल ईयर के 2 साल के बाद कीजिए, फेस आप ही को करना है। ठीक है, सो मीडिया क्वेरी में क्या होता है, हम लोग यहाँ क्या किए, फुल बॉडी पे हमने एक अपना CSS लगा दिया, बट हमें क्या करना है, पहले इसको रन करते हैं। बट हमें क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे हम चाहते हैं कि कुछ हमारा चेंज हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या है, @मीडिया। पहला चीज तो ये है कि आपको @मीडिया यहाँ लगाना होगा हर हाल में, और @मीडिया लगाने के बाद यहाँ पे क्या डालना पड़ रहा है, स्क्रीन एंड, यहाँ हमने मिनिमम बिट डाल दिया। ठीक है, सो मिनिमम बिट कितना, 480, तो कम से कम बिट्स जो है इतना होना चाहिए। तो मिनिमम बिट्स अगर ये है, तो इससे नीचे जब बिट्स जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का कलर ये आ जाएगा। ठीक है, सो जो भी चीज आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जिस भी टैग पे करना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बॉडी पे किया हुआ है, सपोज हम P1 पे करते कुछ, चलिए P1 भी यहाँ लगा लेते हैं। ओ सॉरी, P1 लिख दिया मैंने, P होगा ना, हम लोग टेक्स्ट कलर ले लेते हैं, टेक्स्ट कलर बिकम रेड, आ गया रेड। अब यही चीज मैं ऊपर देता हूँ नॉर्मल में, कहने के लिए तो हम ये कह सकते थे ना कि हमारा ऊपर का जो CSS है ये नीचे वाले को ओवरराइड कर देता। मान लीजिए अभी दिखाता हूँ ओवरराइड करा के, ये दोनों लाइन कमेंट कीजिए, अब आउटपुट क्या आएगा, ये नीचे वाला आएगा, क्योंकि ऊपर पहले क्या आया, पहले ये दोनों एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये 2 लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सेव कीजिए, एनीवे आपका यही आ रहा है, इसको कमेंट कीजिए, आप चेक कीजिए क्या आया,
ऊपर का दोनों CSS, तो सीन क्या हुआ, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये कमेंटेड नहीं है, अनकमेंटेड है, तब भी हमारा नीचे का आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ दे दिया मेन विड्थ, मेन हटाइए और मैक्स कर दीजिए। अब देखते हैं चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि स्क्रीन साइज इसे क्या चाहिए, मैक्सिमम विड्थ 480 होना चाहिए। जब 480 होगा तब ये CSS जो इसके अंदर लिख रहे हैं ये सारा वर्क करेगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, इंस्पेक्ट मोड में जाइए और साइज का स्क्रीन रिजोल्यूशन को आप कम और ज्यादा करके देखिएगा। केस क्या है हमारा 480, जब 480 साइज है तो आपको मीन्स मैक्सिमम विड्थ इतना होना चाहिए। चलिए देखते हैं, स्क्रीन रिजोल्यूशन लाइए, कोई भी ले लीजिए चलेगा। अभी 360 है, 360 पे क्या है, ग्रीन एंड रेड, इट मीन्स 480 तक इसको ले जाइए। सॉरी 1 सेकंड, पहले इसको कर लीजिए। हाँ अब इसको बढ़ाइए, ये कैसे बढ़ेगा, इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। हाँ अब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 4 पे ले जाना है भाई, पूरे तू हट जा। 480 हुआ, चेंज हुआ 481 पे। आप देख सकते हैं आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डिजाइन जस्ट जैसे ही एक भी भाग रहा है आपका चेंज हो रहा है। अब इसके ऊपर जाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं, बट इसके बाद भी हम लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्या चाहते हैं कि मैक्स विड्थ 480 दिए हैं, यहाँ पे हम 600 दे देते हैं, और 600 पे हम लोग क्या चाहते हैं कि, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो एंड टेक्स्ट कलर को छोड़ दीजिए। चलिए ट्राई करते हैं, तो आपको क्या मिल गया, 600 पे येलो, क्या लगाए हैं, मैक्सिमम विड्थ कम कीजिए, कहाँ पर जाकर वो वर्क करेगा पता नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, 460 मैक्सिमम विड्थ, ओके 460 से, फिर 460 से ऊपर जाइए तो ये चेंज हो जाएगा शायद। 460 क्या है, ओह सॉरी, 480 लीजिए तो वो चेंज होगा, नीचे वाला जो, कुछ गलती लिखा हूँ क्या, हाँ सॉरी 600 है ना, करेक्ट करेक्ट, सो 600 पे जाना होगा। हाँ चेंज हुआ 601 पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये 600 पे ये रहा, 480 पे ये है, काम कौन कर रहा है, नॉर्मल जो हमने बॉडी पे दिया, करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि जब आपका जो मैचिंग करेगा वहां पे आपका वो वर्क करेगा, जो मैचिंग नहीं करेगा वैसे कंडीशन में डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये केस होता है मीडिया क्वेरी में। इवन आपको इमेज लाना है आप वहां पे लगा सकते हैं, क्या चीज लग जाएगा, डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले इन लाइन, ये सब कंडीशन लगा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो मीडिया क्वेरी एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो मेन चीज हमें देखना है। नेक्स्ट नॉर्मल है सारा चीज। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, अब लेफ्ट साइड बार, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में मेनू है आपका, इसको कोड को मैं कॉपी करता हूँ, जो प्रॉपर्टी है उसको बस आप समझ लीजिए, बाकी तो कोड नॉर्मल ही रहेगा डिजाइन बनाने के पर्पस पे, हम लोग उसको नहीं फोकस करेंगे। फोकस हम लोग ये करेंगे कि हम उस प्रॉपर्टी को लिखते कैसे हैं, क्योंकि जब आपको कोई भी चीज, कोर का मतलब क्या होता है पता है, कोर टेक्नोलॉजी किन्हीं को, I think advanced. और कोई, कोर का मतलब एडवांस नहीं होता है, एडवांस मतलब एडवांस होता है, कोर मतलब बेसिक कंप्लीट, Basically, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको CSS का कोर आ रहा है, इस मीन्स एकदम बेसिक आ रहा है कि क्या होता है एक एक चीज के बारे में, तो आप इजीली कोई भी चीज को कर सकते हैं ना, वही चीज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CSS पे देखते हैं पहले, तो क्या लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट हमने मेनू बना लिया है जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है, बट हमारा स्क्रीन रिजोल्यूशन पे हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहा है, जब हमारा मैक्स विड्थ 480 है, ठीक है, सो 480 पे हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड को हमने कुछ असाइन किया और मेनू मेनू को हमने असाइन किया विड्थ और फ्लोट लेफ्ट। चलिए इसको लेके जाते हैं स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है कि आप इसको कीजिएगा तभी हम रिजोल्यूशन इसका कम बेस कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं जब आपका स्क्रीन ये रिसाइज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका ये नेविगेशन बार या तो नीचे है या फिर ऊपर जा रहा है। इवन आप इसमें क्या कर सकते हैं, नेविगेशन बार को हम पूरा का पूरा हाइड कर दे सकते हैं। तो मान लीजिए कौन सा है, लेफ्ट साइड बार, मेनू लिस्ट, ओके, लेफ्ट साइड बार है, चलिए ये रहा, इसको कमेंट करते हैं। हाइड कैसे करेंगे, क्या है, डिस्प्ले, कौन सा प्रॉपर्टी है, Display none. ट्राई डिस्प्ले। देखिए बेसिक बेसिक जो प्रॉपर्टी है बताइए, बाकी तमाशा मत देखिए, नहीं तो आप ही लोग को दिक्कत है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जब वो रिजोल्यूशन मैच कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा वो कंडीशन पूरा का पूरा हाइड हो जा रहा है, ठीक है। बट जब कंडीशन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेस ले रहा है, ये कैसे हटेगा, ये स्पेस तो शायद कोड से हो रहा होगा, ओके, मार्जिन यहाँ पे लेफ्ट है, शायद इससे हो रहा होगा। बट एनीवे इसको कैसे हटा सकते हैं, डिस्प्ले नन, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी Visibility hidden. हिडन, Or करेक्ट। देखते हैं, शायद स्पेस ये मेंटेन कर रहा है, लगता है पैडिंग वगैरह से, हाँ वो पैडिंग वगैरह के कारण स्पेस है, जो मार्जिन और ये सब लिया हुआ है ना वो। बट एनीवे हमारे पास जो दो प्रॉपर्टी है, दोनों से किसी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो मेन क्या वर्क किया, मीडिया क्वेरी, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है हम लोग वो देखे कि कैसे वो वर्क कर रहा है। तो आप उसके अंदर जितना है मल्टीपल पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है सीएसएस मीडिया क्वेरी, सेम एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ नया इसमें नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं @मीडिया एंड मैक्स विड्थ हो गया, @मीडिया स्क्रीन। नेक्स्ट फिर है @मीडिया स्क्रीन 600, मीन्स अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए लिखा हुआ है। एक जो है 992 पिक्सल के लिए, एक जो है 600 पिक्सल के लिए, ठीक है। सो आप इस टाइप से क्या है मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटपुट। एक हमारा हॉरिजॉन्टल बार, सॉरी नेविगेशन बार हॉरिजॉन्टल आ रहा है, एक हमारा टॉप टू बॉटम में आ रहा है, ठीक है। सो इस पे कोड पे नहीं जाऊंगा, ये तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या है, कैसे करना है। मेन हमारा जो है ये नेविगेशन बार, डिजाइन बना लीजिए और जो भी आपको स्क्रीन के अनुसार करना है आप उसको इसके अंदर लिख दीजिए, मीडिया क्वेरी के अंदर लिखना क्या है, @मीडिया, यहाँ पे स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, ये दो चीज लिखना। मैं ये नहीं कि मैक्स विड्थ है, नहीं, आप विड्थ भी लिख सकते हैं या मीन विड्थ ले सकते हैं, कोई भी। सो ये था आपको मीडिया क्वेरी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर लार्ज स्क्रीन है तो यहाँ पे मान लीजिए 4 है, मीडियम स्क्रीन आया 2 भाग में बट गया, स्मॉल स्क्रीन आया सिंगल पार्ट में हो गया। तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि लार्ज स्क्रीन किसको बोलते हैं, मीडियम स्क्रीन किसको बोलते हैं, ये सब। तो जाइए इंस्पेक्ट मोड में, और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे आपको दिख रहा है टैबलेट, टैबलेट का रिजोल्यूशन क्या दिखाया, 768, तो आप ले सकते हैं 768 ये स्क्रीन साइज का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोबाइल लार्ज है 425, नेक्स्ट आइए मीडियम मोबाइल का यहाँ पे दिखा रहा है 375, स्मॉल मोबाइल का रिजोल्यूशन 320। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पे मीडिया क्वेरी को लगा सकते हैं। जब एक्चुअली कोई बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट बनता है ना, तो इसका डिजाइन हर एक डिवाइस के पर्पस पे देखा जाता है। ये नहीं है, एक्चुअली जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक डिवाइस को देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कोई बड़े लेवल पे बनाते हैं तो एक नहीं बल्कि हर एक डिवाइस को कंसिडर किया जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपको CSS फ्लेक्स। सो जो काम आप मीडिया क्वेरी से कर रहे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज से भी कर सकते हैं, उसे हम लोग फ्लेक्स से भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्स मीडिया क्वेरी क्या हेल्प किया आपको, कोई भी डिजाइन को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने में, ठीक है। सेम काम कौन करता है, फ्लेक्स भी करता है। तो फ्लेक्स भी आपको क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा डिजाइन को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी ये सब जो प्रॉपर्टी है नए, खास करके जो फीचर है, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं होते हैं। खास करके क्रोम में तो लगभग आपका सपोर्टेड रहेगा, 99% है कि सपोर्टेड रहेगा। बट डिफरेंट ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और ये सब ब्राउजर में क्या है, वो बहुत सारा चीज में सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में ये हमें प्रॉब्लम हो जाता है। एक सेकेंड,
मुझे वो क्लास कैंसिल करने दीजिए, वो बैच को। सो अब देखते हैं कि फ्लेक्स काम कैसे करता है। सो अ मॉडर्न वे टू ऑफ क्रिएटिंग कॉलम लेआउट इज टू यूज सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स। फॉर एग्जांपल, आप ऊपर आपको इमेज दिख रहा है। हाउएवर इट इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 एंड अर्लियर वर्जन। इसका मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, सो इसीलिए हमेशा क्रोम को यूज कीजिए। ठीक है, चलिए कोड को कॉपी कीजिए और पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अभी रात हुआ है ना, उसको कॉल करके देखना है। सो अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग ऊपर का पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सो रिसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द रेस्पॉन्सिव इफेक्ट ऑन द स्क्रीन देयर आर 992 पिक्सल वाइड और लेस। ठीक है, द कॉलम विल रिसाइज फ्रॉम 4 कॉलम टू 2 कॉलम। जस्ट एक सेकंड। सो क्या हो रहा है, 992 और लेस, द कॉलम विल रिसाइज फ्रॉम द 4 कॉलम टू 2 कॉलम ऑन द स्क्रीन that are 600 byte or less. The column will speak on the top of, sorry, stack on top of each other instead of the next. मतलब जो काम हम लोग जब आप क्या कर रहे थे, मीडिया क्वेरी ले रहे थे, तो मीडिया क्वेरी में हम लोग क्या किए, पहले कॉलम हमारा 4 भाग में था, उसको फिर हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे, या तो 2 या सिंगल, उस टाइप से हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। ये हो किसके हेल्प से रहा है, हो रहा है आपको ये फ्लेक्स के हेल्प से। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि फ्लेक्स इसमें सब कुछ करेगा, दूसरे भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम कोड पे आते हैं हम लोग। सो फ्लेक्स जब भी क्रिएट करेंगे तो क्या होता है, हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज ये है, फ्लेक्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स किसको करेंगे, क्या क्लास लगा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कंटेनर फॉर द फ्लेक्स बॉक्स। मतलब एक कंटेनर लेंगे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें फ्लेक्स बना देना होगा कंटेनर को। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेनर क्या है, हमारा रो। चलते हैं सीएसएस पे, इसका पहले क्लास पे, और रो कहाँ पे है। सो अब यहाँ आपको दिख रहा है ये पूरा एक रो है, करेक्ट। मतलब ये पूरा जो हुआ ये क्या है, एक डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया गया इसको, कंटेनर, इसको एक कंटेनर कंसीडर किया गया। अब आते हैं कंटेनर के अंदर, आपको दिख रहा है क्या है, ये छोटा छोटा एलिमेंट है, करेक्ट। ये आपको 4 एलिमेंट बना हुआ है। अब उस पे देखते हैं सीएसएस। सो पहला क्या प्रोसेस हुआ हमारा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना है, और ये फ्लेक्स रैप है, दो चीज इस पे हमें लगा देना है। नेक्स्ट, अब आपके पास टोटल 4 कंटेनर जो आप बनाए हैं, कॉलम नाम का प्रॉपर उसके पास क्लास लगा हुआ है। सो हर एक के हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड एलिमेंट या चाइल्ड चाइल्ड हम लोग बोल सकते हैं भी। तो जो कॉलम जो बना 4 भाग में, अब उसको कितना रखना है वो आप बता दीजिए, जो भी उस पे लगाना है यहाँ पे लगा दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट 4 इक्वल कॉलम। सो 4 इक्वल कॉलम में बांट दिए, फ्लेक्स इक्वल टू कितना 25%। मतलब ऊपर में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्स इक्वल टू कितना दिए 25%। अब हमारा 25% में वो डिवाइड हो जाएगा,
और नेक्स्ट हम लोग क्या किए, पैडिंग इक्वल टू 20 पिक्सल, तो वो तो ठीक है, साइड का चीज है। बट स्क्रीन रिजोल्यूशन के अनुसार अब क्या करना है, तो ये तो हुआ 25% जब ये कोई भी स्क्रीन मैच नहीं करेगा। बट अगर सपोज कोई मैच कर गया कंडीशन, तो यहाँ पे हमने फिर से मीडिया क्वेरी यूज किया। जबकि मीडिया क्वेरी अकेला कुछ काम, मतलब अगर आप फ्लेक्स लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लेक्स अकेला हर एक काम कर देगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन रिजोल्यूशन के अनुसार उसके लिए आपको स्क्रीन मीडिया क्वेरी लेना ही होगा। सो मीडिया क्वेरी के अनुसार क्या हो रहा है, जब हमारा स्क्रीन साइज 992 है, ठीक है, तो उस केस में हमारा फ्लेक्स का कितना परसेंट हो रहा है, तो फ्लेक्स हमारा चेंज होके 50% हो गया। जब हमारा मीडिया क्वेरी मीन्स स्क्रीन जो है 600 पिक्सल है, फ्लेक्स क्या हो रहा है हमारा, फ्लेक्स का हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। मतलब क्या हुआ, फ्लेक्स आपका कॉलम लेवल में आ गया। अभी जो फ्लेक्स है ये किस टाइप में है, इसका डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, रो ये रो है। लेकिन जब इसी चीज को हमने क्या किया, जब हमारा स्क्रीन छोटा हो गया तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट डायरेक्ट कॉलम में। अदरवाइज हम लोग फ्लेक्स भी बता सकते थे कि कितना, मान लीजिए 100% कर देते, तो 100% पे क्या होता है, सिंगल में चला जाता है वो। ठीक है, अब इसको देखते हैं डिफरेंट रिजोल्यूशन में करके। तो डिफरेंट रिजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हम इंस्पेक्ट करेंगे तभी कर सकते हैं, दूसरा ही प्रोसेस है। स्क्रीन मिनिमाइज कर लीजिए, आपको इस पे भी दिखेगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, आप स्क्रीन रिजोल्यूशन को नहीं समझ सकते हैं कि कितना परसेंट हुआ। जैसे देखिए अभी हमारा 2 भाग में आ गया, फिर कुछ देर के बाद 4 में आ जाएगा। तो हम इसमें क्या सीन है कि हम रिजोल्यूशन को नहीं समझ सकते हैं कि हमारा कितने रिजोल्यूशन पे 4 में आया, कितने पे 3 में, कितना पिक्सल होने पे 2 में आ रहा है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर हाल में रिजोल्यूशन वाइज जाना पड़ेगा। तो सीन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वो चीज को। ठीक है, सो क्या करते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन के केस में, क्या करके शो फ्लेक्स कितना 100%, देखते हैं ट्राई करके ये वर्क करता है या नहीं। मेरे हिसाब से वर्क करना चाहिए। हुआ क्या, कोई कंडीशन मैच हो रहा है क्या, कितना पे है, 600 पिक्सल मैक्स बिट, जाते हैं 6 पे, 6 से ऊपर जाइए। 600 तक काम करना चाहिए था, 600 हाँ, तक काम। ओके, ये नहीं काम कर रहा है, इट मीन चलिए काम करते हैं इसको हम लोग। कितना 50% है, 25% करके देखते हैं कुछ होता है क्या। 600 तक उसको करना चाहिए था, बट ये नहीं कर रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें 100% करना है ना, उस टाइम हमें डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखिएगा, लेकिन मुझे लगता है करना चाहिए इसको। ठीक है, क्या है 600 पिक्सल, 600 पे लाइए पहले, तो ये आया, ये सही है, मतलब वो 100 वाला काम नहीं कर रहा है। ओहो, 1 सेकंड 1 सेकंड, कहाँ से काम करेगा, हम लोग इसको रो पे चेक कर रहे हैं, दिख रहा है, कॉलम पे चेक करेंगे तब दिखेगा ना, कॉलम पे तो वर्क कर ही जाएगा फिर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉलम फ्लेक्स इक्वल टू 100%, वर्क किया, ठीक है, तो वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है इसका, क्योंकि हम लोग कॉलम पे करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके केस में क्या किए, पूरा का पूरा डायरेक्शन को ही हमने चेंज कर दिया। हमने जो ये स्टैक हमारा जो क्रिएट हुआ ना पूरा, ये पेरेंट आप बोलिए इसको कि हमारा ये जो हम पेरेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले क्या है, पहले ये आपको पूरा रो में आ रहा है, करेक्ट, और इसे हम लोग क्या किए, पूरा का पूरा उसको रोटेट करवा दिए। ये अभी जो ये आ रहा है, इसको क्या किया गया, पूरा रोटेट करवा दिया गया। मतलब
जो डिजाइन अभी वैसे है, अब डिजाइन आपको चेंज हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो वही सीन यहाँ किया जा रहा है, समझ गए। सो हुआ क्या, हमने रो को पूरा चेंज कर दिया। ये कंपलसरी नहीं है कि रो को ही करना, आप कॉलम को कर सकते हैं, दोनों केस में वर्क करेगा। बट कीप इन माइंड, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पहला चीज हमें क्या करना है, पेरेंट लेवल पे हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, ठीक है। एंड सेकंड हमें फ्लेक्स रैप लगाना है, ठीक है। बट मेन इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले फ्लेक्स। नेक्स्ट, अब एलिमेंट को, जो आपको एलिमेंट मिल रहा है बारी बारी से, अब आपको उस पे वर्क करना है। सो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम पे हमने फ्लेक्स लगा दिया कि कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट हमें मूव कराना है, जो भी चीज। तो मेन हमें ये केयर करना है कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना हर हाल में कंपलसरी है, समझ गए। एक बार रैप को देखते हैं कमेंट करके, वेदर वर्क करता है या नहीं करता है। प्रॉपर कर रहा है, देखते हैं दूसरे स्क्रीन पे ले जाकर ये कुछ ब्रेक होता है क्या। ओ फिलहाल तो सही है, 4 पार्ट में आ गया। कितना पर है दूसरा स्क्रीन, 992, ओके 50%, फाइन। 992 नहीं, ये क्यों नहीं वर्क किया, क्योंकि हमने फ्लेक्स रैप को हटाया था। अब देखते हैं इस पे, शायद इसमें वर्क करना चाहिए। 992 पे आते हैं या, बट यही चीज जब फ्लेक्स रैप रख रहे हैं तो नहीं हो रहा है, मतलब इस केस में वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें फ्लेक्स रैप भी साथ में रखना होगा। तो ध्यान रखिए, दो प्रॉपर्टी रखना है हमें, पेरेंट लेवल पे फ्लेक्स रैप, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड सेकंड फ्लेक्स रैप को रैप कर देना है। इसका क्या दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एक बार देखिए, रैप है, नो रैप है, रैप रिवर्स है, ये 2-3 प्रॉपर्टी है। आप इसको, ये चीज, ठीक है। और नेक्स्ट, हर एक एलिमेंट को क्या करना है, एलिमेंट पे रख लीजिए बस, पेरेंट एंड एलिमेंट दोनों पे हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड द एलिमेंट विथ मीडिया क्वेरी। ऑलरेडी हम लोग जस्ट अभी देखे थे नेविगेशन बार के केस में कि हम लोग एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या था, डिस्प्ले नन। जितना स्क्रीन पे आपको चाहिए उस पे लगा दीजिए डिस्प्ले नन, एलिमेंट आपका ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम एलिमेंट के फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं मीडिया क्वेरी के अनुसार। अब ऐसी बात है, जितना चाहिए हमें फॉन्ट साइज, उसके अंदर जाइए, उसके अंदर वो चेंज कर दीजिए, 80 पिक्सल 100 पिक्सल जो भी आपको लगाना है लगा दीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, फिर से फ्लेक्स का ही है मेन कंटेंट। सो फ्लेक्स बॉक्स, तो क्या करते हैं, फ्लेक्स सीएसएस फ्लेक्स लेआउट मॉड्यूल। बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर आर 4 लेआउट मॉड्यूल मोड्स। फर्स्ट, block for section in the web page, inline for text, table for two-dimensional table data, positioned for explicit position of an element. So the flexible box layout module make it easier to design flexible responsive layout structure without using the float or positioning. ओके, सो फ्लेक्स बॉक्स मॉडल एलिमेंट देखते हैं। सो स्टेप 1 क्या करना है, टू स्टार्ट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स मॉडल यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन ए फ्लेक्स कंटेनर। जो जस्ट अभी हम लोग ऊपर के एग्जांपल में डिस्कस किए कि पहले हमें क्या करना होगा, फ्लेक्स कंटेनर हमें बनाना पड़ेगा। वो कौन रहेगा, पेरेंट लेवल का। नेक्स्ट क्या करना है, अ फ्लेक्सिबल लेआउट मस्ट हैव अ पेरेंट एलिमेंट विथ दैट डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट टू फ्लेक्स। अगर आप पीछे वाला एग्जांपल देखिए, सो सबसे फर्स्ट में जाइए जो पेरेंट लेवल पे बन रहा है, रो जो है हमारा पेरेंट लेवल पे बना, हमने क्या किया इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। तो पेरेंट लेवल में हर हाल में डिस्प्ले फ्लेक्स आपको प्रॉपर्टी सेट करना होगा। नेक्स्ट, चाइल्ड पे आते हैं। सो डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम फ्लेक्सिबल आइटम। कहने का मतलब हुआ, अगर आपने पेरेंट पे फ्लेक्स कर दिया तो नीचे का जो भी चाइल्ड है वो ऑटोमेटिक फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे सपोज आपको वाटर टैंक के थ्रू मीन्स वाटर सप्लाई आ रहा है कहीं पे से भी, ठीक है। तो अगर वाटर सप्लाई आ रहा है और किसी कारण से वो जो वाटर जो सप्लाई हो रहा है उस वाटर में कुछ मतलब इशू हो जाए, ठीक है, कुछ मान लीजिए कुछ उसमें मिक्सअप हो गया, तो वो जो मिक्सअप हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ वो एक जगह थोड़ी हुआ, वो मिक्सअप जो हुआ वो सभी के यहाँ चला गया। तो सेम वही मतलब वो पूरा इफेक्ट हो गया ना वो सिचुएशन उसके कारण। तो सेम वही चीज, अगर हमने पेरेंट में फ्लेक्स लगा दिया तो हमारा फ्लेक्स पेरेंट लगने के कारण ऑटोमेटिक सारा चाइल्ड फ्लेक्स हो गया, ठीक है। सो वो सारा जो है वो फ्लेक्सिबल आइटम में आ जाएंगे। सो
द डायरेक्ट चाइल्ड, लेकिन हाँ कौन, डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम फ्लेक्सिबल आइटम। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो द एलिमेंट एबव रिप्रेजेंट्स अ फ्लेक्सिबल कंटेनर ब्लू एरिया विद द 3 फ्लेक्स आइटम। जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये आपका पेरेंट हो गया, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल कंटेनर हुआ। और जो अंदर में जो 1 2 3 है, ये आपका फ्लेक्स आइटम है, फ्लेक्सिबल आइटम। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है क्या कि पेरेंट को हमें फ्लेक्स बनाना होगा, रैप कर, नो रैप कर देना होगा, सॉरी रैप करना होगा। चाइल्ड पे हमें क्या करना होगा, जो भी आप प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं फ्लेक्स में, जितना परसेंट भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग या मार्जिन या इमेज का साइज अगर कम बेस करना है तो वो सिचुएशन देते हैं। बट वो ना देकर हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, फ्लेक्स 50%, फ्लेक्स 10%, वो चीज पास कर दीजिए, वो आपका इफेक्ट कर जाएगा। सो नेक्स्ट है पेरेंट एलिमेंट कंटेनर में। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ कोड में मैंने ये डाला हुआ है। सो द फ्लेक्स कंटेनर बिकम फ्लेक्सिबल बाय सेटिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू फ्लेक्स। सेम थिंग है जो पेरेंट को हम लोग कर रहे थे। सो ए फ्लेक्सिबल लेआउट मस्ट हैव ए पेरेंट एलिमेंट विद द डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट टू फ्लेक्स। तो पेरेंट एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, फ्लेक्स सेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लेक्स कंटेनर पेरेंट एलिमेंट हुआ और डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो मेन कंटेनर है वो क्या हो गया, वो आपका फ्लेक्स बन गया, ठीक है। ये कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें जो है आपको प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी इसमें मटेरियल में डाला हुआ है, एक एक एलिमेंट का कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें उस टाइप से बना उसको किया हुआ है। आपको अगर और डीप में पढ़ना है तो फिर आप W3 स्कूल का देख सकते हैं, बट इतना इनफ है क्योंकि हम लोग इसमें हर एक चीज को रख चुके हैं। बट एनीवे अगर कुछ वैसा रहा तो आप देख सकते हैं उसको भी। जो रेस्पॉन्सिव बनाने में अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ओह सॉरी, बस यहाँ तक है। दो बार लग गया, हटाइए इसको। समझ में आ रहा है क्या फ्लेक्स यूज कैसे करते हैं? अब देखिए, कराइए। देखिए फ्लेक्स को अच्छे से समझिए क्योंकि आपको रेस्पॉन्सिव करने में यही हेल्प करेगा, दूसरा और कोई नहीं हेल्प करने वाला है। कहीं पे कोड ब्रेक लगता है क्या, शायद यहाँ पर। सो आपको यहाँ दिख रहा है हमने क्या, हमारा क्या किया हुआ है कि जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है वो पूरा कंटेनर को फ्लेक्स लिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिर फ्लेक्स में डिस्प्ले रैप, फ्लेक्स रैप क्यों नहीं लगाया हुआ है। तो हम लोग रैप इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हम लोग एक एक स्टेप पे जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या किया गया है, सिर्फ पेरेंट को फ्लेक्स बनाया गया और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड है वो ऑटोमेटिक फ्लेक्स बन गया, ठीक है। सो यहाँ क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स लग गया, बैकग्राउंड कलर को हटाइए। तो यहाँ पे है नोट अ फ्लेक्सिबल लेआउट मस्ट हैव ए पेरेंट एलिमेंट विद द डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट टू फ्लेक्स, ओके। सो देखते हैं फ्लेक्स कंटेनर कहाँ पे है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरेंट लेवल पे फ्लेक्स कंटेनर, और चाइल्ड में क्या है, तो तीन हमारा डिव है। अब आते हैं डिव पे। सो यहाँ पे आपको आइए चाइल्ड का, तो फ्लेक्स कंटेनर डिव, जो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ बनाया जा रहा है। सो डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ द फ्लेक्सिबल कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम द फ्लेक्सिबल आइटम। चाइल्ड आपका फ्लेक्स बन गया, सॉरी पेरेंट फ्लेक्स बना, चाइल्ड ऑटोमेटिक फ्लेक्स हो जाएगा।
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, मार्जिन है, पैडिंग है, फॉन्ट साइज है, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो ये रहा कि हम पेरेंट के ऊपर काम किए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल कंटेनर पे आते हैं। तो फ्लेक्सिबल कंटेनर प्रॉपर्टीज आर है। ठीक है, कंटेनर पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक है आपको फ्लेक्स डायरेक्शन, नेक्स्ट है फ्लेक्स रैप, नेक्स्ट है फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेनर। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल डायरेक्शन पे। सो डायरेक्शन हम क्या करेंगे, डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसको, कंटेनर का, जो जस्ट आप स्टार्टिंग में देखे थे। ये कंटेनर जो है, कंटेनर इन द सेंस कौन सा, ये नहीं, ब्लू कलर वाला पूरा, वो कंटेनर हुआ, क्योंकि पेरेंट लेवल पे कंटेनर है। तो जो डिस्प्ले हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए हैं, आप कंटेनर को, अभी क्या है कंटेनर किस डायरेक्शन में, रो या कॉलम, रो सर। रो है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन उसको कन्वर्ट कर देंगे और वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार रन कराता हूँ। CSS सेम रहेगा, जस्ट आपका फ्लेक्स को चेंज कर दीजिए कि चाइल्ड पे चेंज हुआ है। फ्लेक्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाने में आपको यही हेल्प करेगा, दूसरा कुछ नहीं करने वाला है। फ्लेक्स, मीडिया क्वेरी, ये सब जो कुछ कुछ टॉपिक है, ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हमारा जो कंटेनर था वो हमारा पहले डायरेक्शन मतलब रो में आ रहा था, अभी हमारा कॉलम में आ गया। हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, आपको साइज कम बेस करना है, आप उसको कर सकते हैं, वो तो अलग सिचुएशन है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट क्या हुआ, जो हमारा आउटपुट, जो हमारा रो में था, हमारा कॉलम में चेंज हो गया। कैसे हुआ, फ्लेक्स डायरेक्शन के हेल्प से। नेक्स्ट आते हैं कॉलम रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन, ओके, कॉलम रिवर्स नहीं है। ठीक है, कॉलम रिवर्स क्या करेगा, हमारा कॉलम जो सेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। तो कॉलम रिवर्स वैल्यू स्टैक द फ्लेक्स आइटम वर्टिकली। एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले कौन है, 1 2 3 है, बट जब आप रिवर्स कीजिएगा 3 2 1 आएगा ऊपर से, टॉप लेवल से। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, क्योंकि बाकी सब सेम ही रहेगा। सो कॉलम हम लोग दिए थे, कॉलम को कॉलम में रहने देते नहीं, हट लीजिए, क्या है, फ्लेक्स रिवर्स था, डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स था या सिर्फ रिवर्स था, हाँ ठीक है, कॉलम रिवर्स। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हटा दिया मैंने। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो पहले ये 1 2 3 आ रहा था, इसने क्या किया, आपका डेटा को पूरा को उल्टा कर दिया ऊपर से नीचे में, तो ये रिवर्स कर देता है। ठीक है, सो द रो वैल्यू स्टैक द फ्लेक्स आइटम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। रो में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। द रो रिवर्स वैल्यू स्टैक द फ्लेक्स आइटम हॉरिजॉन्टली बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स रो रिवर्स। ये क्या हुआ, ये कॉलम रिवर्स है। ठीक है, हम लोग रो रिवर्स कर सकते हैं। रो रिवर्स मतलब क्या होगा, जो डेटा टॉप टू बॉटम आ रहा है, इसको कमेंट कीजिए, चेक कीजिए, आ गया नॉर्मल। अब आप रो रिवर्स कर सकते हैं। रो रिवर्स, ये पूरा डेटा हमारा मतलब लास्ट में चला गया। यही चीज आप फ्लोट के हेल्प से भी कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन फ्लोट एंड रिवर्स लेते हैं, ये सॉरी, फ्लोट या फ्लेक्स में क्या अंतर होता है, फ्लेक्स आपको रिस्पॉन्सिव करता है, बट फ्लोट जो है रिस्पॉन्सिव नहीं करता है। तो ये सब कुछ कुछ डिफरेंस है। सो फ्लोक्स रिवर्स क्या, फ्लोट ये फ्लेक्स रिवर्स क्या कर रहा है, हमें रो एंड कॉलम दोनों में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लेक्स रैप, जो हमें सबसे पहले एग्जांपल में हम लोग देखे थे, जो पैरेंट पे लगा हुआ था। सो रैप का मतलब क्या होता है, डेटा को रैपिंग करना। रैपिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं, तब तक जरा पानी पी लूं। सर जब बोलिए। कोई हम डिस्प्ले स्क्रीन साइज मिनिमाइज या कम छोटा बड़ा करते हैं, तो कंटेंट ऊपर से मूव होकर नीचे आते जाए, साइज को मतलब स्केच करते हैं। और कोई, चंद्रशेखर, सुजाता, अंजलि,
चलिए, सो देखिए, रैप का मतलब होता है आपको जब भी डेटा ज्यादा हो उसको रैप कर देना, मतलब उसे किसी भी तरह से आपके पूरे स्क्रीन के जो सेक्शन है उसमें ला देना। जैसे इसी स्क्रीन पे आपको क्या है, बहुत सारा डेटा अभी तो फिलहाल नॉर्मल हो गया, इसको हम लोग रैप करते हैं। अब आपको दिख रहा है बहुत सारा डेटा आपका अंदर चला गया, इतना सारा डेटा अंदर है, इसको रैप करना है। कैसे रैप करेंगे? अब मत बोलिए कोड कहाँ लिखेंगे, आउटपुट कहाँ आएगा, कैसे रैप होगा ये? फ्लैक्स रैप रैप हाँ, फ्लेक्स रैप। सॉरी, कौन सा रैप होता है सर? इसको रैप कैसे करेंगे डेटा को? ओ, इसमें VS कोड में सर? हाँ, VS कोड में। पर शिफ्ट ऑल्ट ऐप दबा के ये होता है, क्या ना होता है सर, भूल गए। मेरे में फाइल पे ऑटोमेटिक जाइए, फाइल पे जाइए, फाइल में है क्या, शायद कहीं सेटिंग में देख लेते सेटिंग में हैं। सेटिंग में सेटिंग में सर। सेट, नहीं जी, सेटिंग में नहीं होगा, यहीं पे सेटिंग कहीं में रहता है। नहीं सर, सेटिंग में मुझे याद है। ये रहा, रैप अभी व्यू, व्हाट रैप? ये रहा, ये है। व्यू में जाइए, व्यू में आपको नीचे दिख रहा है वर्ड रैप, आप इसको क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्या होना हुआ? चाहिए। कुछ हुआ? सारा डेटा जो था आपका रैप हो गया उसी स्क्रीन के अंदर। अब इसको आप मिनिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए। क्या हुआ? जो डेटा 2 लाइन में गया था वो सिंगल लाइन में आ गया, दिख रहा है? 3 लाइन में आ गया। जितना बड़ा डेटा होगा वो ऑटोमेटिक रैप कर लेगा, तो इसी को बोलते हैं रैप करना। हटा देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे कोड में, तो वही सीन क्या होता है, फ्लेक्स के केस में वर्क करता है। तो फ्लेक्स रैप हम कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे यूआई में यहाँ पे दिख रहा है, डिजाइन में क्या हो रहा है, जब आपका डेटा ज्यादा हुआ है 8 9 10 11 12, अगर स्क्रीन से बड़ा हो रहा है वो नीचे आ जा रहा है। स्क्रीन जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा करते जाइएगा वो उसके अनुसार एडजस्ट करेगा, नहीं होगा वो नीचे लाइन पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। सो द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर फ्लेक्स आइटम शुड रैप और नॉट। अगर आप फ्लेक्स रैप करते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको रैप करना है या नहीं करना है। रैप करना है, फ्लेक्स रैप का प्रॉपर्टी का है, आप वैल्यू जो दीजिएगा रैप दीजिएगा। रैप नहीं करना है, नो रैप कर दीजिए। लेकिन so the example below have 12 flex item to better demonstrate the flex wrap property। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रहे, जब आप ज्यादा डेटा डेटा लीजिएगा तभी आप उस चीज को अनुभव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप लेस डेटा रखिएगा आप नहीं उसको पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। सो हर हाल में हमारे पास डेटा जो है ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। ठीक है। सो कहाँ पे लगाएंगे? डिस्प्ले रैप, और यहाँ पे लगाते हैं फ्लेक्स रैप। रुकिए, मैं दूसरा बना लेता हूँ, वो ज्यादा से ठीक रहेगा। एक नया सीट। ओके, कोड कहाँ है? कोड नहीं है क्या? फ्लेक्स रैप कंटेनर, हाँ बना हुआ तो है 12 को यहाँ पे कंटेनर, इसको लेना है। आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया? ये एग्जाम अभी कॉलेज चल रहा है, क्या हो रहा है अभी? प्लेसमेंट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग चल रहा है, ओके। ट्रेनिंग कीजिए सही से। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन फिलहाल हम लोग इसको पूरा हटा ही देता हूँ, डेस्क कॉलम भी हटाता हूँ, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, डायरेक्शन कॉलम क्यों आ गया, हटाइए इसको भी, ऑटोमेटिक रो आ जाएगा। ठीक है, रो हो गया। अब देखते हैं क्या हो गया। डेटा ज्यादा हुआ आपका उसी स्क्रीन में जा रहा है, करेक्ट।
और नहीं तो हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो इसी एरिया में क्या हो रहा है, फिलहाल एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा है, बट ये नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग कुछ वैसा प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किए हैं। अब आइए फ्लेक्स रैप, फिलहाल नो रैप है, बाय डिफॉल्ट नो रैप है। अब हम रैप कर लेते हैं, अब देखते हैं वर्क करता है क्या हुआ। अब आपका स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि जब आपका डेटा ज्यादा भी अगर हो रहा है तो नीचे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, आपका वेबसाइट चेक नहीं कर रहा है, और जो भी डेटा इसके अंदर था वो ऑटो एडजस्ट, उसी ऑटो फिट उसको कहेंगे, ऑटो एडजस्ट नहीं, ऑटो फिट हो जा रहा है उसी स्क्रीन में। बट इसी चीज को हम लोग रैप ना करके नो रैप करिए। अब देखिए उसी स्क्रीन में आपका डेटा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा में चला गया और वेबसाइट भी आपका चेक कर रहा है। समझ में आ गया? तो जब भी डेटा ज्यादा हो रहा हो तो मीन्स डेटा ज्यादा हो ना हो मैटर वो नहीं करता है, मैटर ये करता है कि जब भी हम फ्लेक्स यूज कर रहे हैं आप नो रैप को जरूर कर, मीन्स रैप को जरूर कीजिए। वो डेटा के अनुसार आपका काम मतलब हेल्प करेगा कि वेदर हमें रैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केस आप कर ही लीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है हमारा डेटा ज्यादा हो गया किसी कारण से, तो उस केस में आपका कोड ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए इस टाइप से हम कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत की नहीं को। सो ये था हमारा रैप का प्रॉपर्टी। जब आप रैप करते हैं एंड नो रैप करते हैं तो जब हमारा रैपिंग हुआ, एक्स्ट्रा स्क्रीन साइज स्क्रीन का बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। अगर आप नो रैप करते हैं, एक्स्ट्रा स्क्रीन होगा, डेटा उसी स्क्रीन में एडजस्ट करना चाहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है? सो द रैप वैल्यू स्पेसिफाई दैट द फ्लेक्स आइटम विल रैप इफ नेसेसरी। अगर जरूरत है तो वो डेटा को रैप कर लेगा, नहीं तो फिर उसमें ही वो छोड़ देगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं? ओके फाइन। समझ में आ रहा है या पूरे ऊपर से जा रहा है? अगर ऊपर से जा रहा है तो फिर सर बहुत अच्छी समझ बात में है। आ रहा है। एक क्वेरी था सर। बढ़िया। सर सर आप बोले ये फ्लैक्स सब ये कोई कोई ब्राउज़र में काम नहीं करता है, पर हाँ यूज़र को हमको तो नहीं पता यूज़र कौन सा ब्राउज़र यूज़ करेगा। करेक्ट। तो तो देखिए मोस्ट ऑफ, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द केस जो है ना, लाइक यूजर, मैं मान रहा हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या जो भी केस है, तो बट मोस्ट ऑफ द केस जो है वो यूजर नॉर्मल ही करता है। ठीक है? मीन्स लाइक क्रोम हो गया या एज हो गया। तो वैसे केस में जब हम लोग रियल वेबसाइट अगर हम बनाते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, तो मान लीजिए फ्लेक्स अगर काम नहीं कर रहा है, जब हम दूसरे ब्राउजर में चेक करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस वेबसाइट के लिए भी लिखना पड़ेगा कोड को। मान लीजिए फ्लेक्स नहीं काम कर रहा है, मीडिया क्वेरी तो काम करेगा ना। तो हम यहाँ पे यस हुआ क्या, यहाँ पे डेटा जब ज्यादा हो रहा है तो ऑटो एडजस्ट हो रहा है, तो उस चीज को हम मीडिया क्वेरी से कर लेंगे, कर सकते हैं ना। मीडिया क्वेरी में हम देखे हैं, जब हम लोग फ्लेक्स यूज नहीं किए थे, उससे पहले जब हम टॉपिक पढ़े मीडिया क्वेरी को, तो वहां देख रहे थे ना कि जब हमारा स्क्रीन 50 पर मीन्स 250 पिक्सल का हो, 250 रेशियो में जाए, 250 पिक्सल हो, तो उस केस में जो ब्लॉक है वो 50% हो जाएगा या 25%, कुछ वैसा सीन हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हम मीडिया क्वेरी से एडजस्ट कर ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो यस वैसा भी, तो अल्टरनेट हमारे पास बहुत है, कोई भी चीज हम यूज करके कर सकते हैं। वैसा केस नहीं है कि हम अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। ठीक है? और कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं होगा दिक्कत, चलिए। जो भी दिक्कत हो रखा कीजिए, उसको बाहर मत निकाला कीजिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है? अगर आप कोई कंटेंट को सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो आप जस्टिफाई के हेल्प से ये कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ दिख रहा है क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मीन्स फॉर सेंटर में लाने के लिए, जिसे हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं, आप जस्टिफाई कंटेंट के हेल्प से भी कर सकते हैं। सो द फ्लेक्स आइटम एट द बिगिनिंग फॉर ऑफ द कंटेनर जस्टिफाई, अगर आप स्टार्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, इसको अनकमेंट कीजिए, तो जस्टिफाई सॉरी फ्लेक्स स्टार्ट कर दीजिए।
कंटेंट आपका बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रहता भी है वहां। अगर हम कंटेंट को एट द एंड रखना चाहते हैं, एट द एंड पे जाइए, लास्ट में आ गया। यही काम हम फ्लोट से भी कर सकते थे। नेक्स्ट, कंटेंट को क्या करते हैं, स्पेस अराउंड, मतलब उसके स्पेस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं दाएं बाएं या अगल बगल जो भी है। आपको दिख रहा है चारों तरफ क्या हुआ, स्पेस मिल गया। स्पेस भी हमारा ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें ऊपर में सबसे पहले पेरेंट में क्या लगाना पड़ेगा, फ्लेक्स रैप लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इस टाइप जा सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये क्या करेगा, नाम से ही आपको समझ में आएगा कि क्या इशू हो रहा है। स्पेस बिटवीन मतलब कंटेंट को कंप्लीट सेंटर पे लाया गया बीच में, और मतलब स्पेस आपको दोनों तरफ दे दिया गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखते हैं जूम करके क्या हो रहा है। अभी भी आपका स्पेस जो है वो मेंटेन कर रहा है मिडिल में, हर एक एलिमेंट के पास स्पेस मेंटेनेबल है, और आपका कंटेंट भी प्रॉपर है, समझ गए। सो ये केस हुआ जस्टिफाई कंटेंट का। कोई दिक्कत? तो जस्टिफाई कंटेंट में कितना प्रॉपर्टी रहा हमारा, हम कंटेंट को फर्स्ट में ला सकते हैं, लास्ट में ले जा सकते हैं, सेंटर में ले जा सकते हैं, 3 चीज। उसके बाद 2 और स्पेस के लिए, एक हुआ स्पेस बिटवीन, दूसरा हुआ स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ठीक है, जो आपको क्या कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। नीचे का तो नॉर्मल है, नीचे वाले पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट को सेंटर में ले आएंगे। नेक्स्ट है आपको द अलाइनमेंट आइटम प्रॉपर्टी। सो इट विल वर्क ऑन वर्टिकल अलाइनमेंट। किससे वर्क करेगा, जब हमारा एलिमेंट वर्टिकली हो। सो द अलाइनमेंट आइटम प्रॉपर्टी स्ट्रेच, ठीक है। तो 1 2 3 जो भी आप बॉक्स देख रहे हैं, ये क्या करेगा, ये आपका पूरा ऊपर से स्पेस को ये मेंटेन कर लेगा, स्पेस आपका ये ले लेगा। देखिए जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना फ्लेक्स, सब छोटा छोटा एक एक मतलब जो भी आप कहिए, एक एक उसका प्रॉपर्टी को एक नॉर्मल टॉपिक बना के रखा हुआ है, छोटा छोटा सेपरेट, जिससे क्या हो कि आपको हर एक टॉपिक पे आपको एक एक कम से कम क्लियरिटी रहे। फ्लेक्स वगैरह क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा दिया हुआ है उस टाइप से जोर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आ रहा है क्या, हमने लिया क्या, स्ट्रेच अलाइंग आइटम, ठीक है। सो पहला तो हो गया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर दिए। हाइट, हमने हाइट यहाँ पे मेंटेन कर दिया। हाइट कमेंट करते हैं, देखते हैं क्या ये नीचे तक जाएगा, नहीं, ये उतना ही रह गया जितना ये कंटेनर है। कहीं पे हाइट वेट फिक्स है क्या, फ्लेक्स कंटेनर डिव, ओके, ये बॉक्स जितना रहेगा उतना ही हाइट रहेगा ना। तो ये हमें बॉक्स को अगर बड़ा कीजिए तो टेक्स्ट अलाइनमेंट विड्थ 100 पिक्सल, लाइन हाइट 70 पिक्सल, 75, बॉक्स का कहाँ है, ओके, वो बॉक्स के कारण ही रहेगा, बट एनीवे हटाइए उसको। तो जितना हम हाइट बढ़ा देंगे, ये क्या करेगा, उतना एरिया में स्ट्रेच कर लेगा, ठीक है। अब कंटेंट पे आते हैं। नीचे का प्रॉपर्टी में नहीं, कुछ नहीं है, मेन प्रॉपर्टी यहीं पे है। चलिए, सो अलाइंग आइटम सेंटर, देखते हैं कहाँ जाता है। क्या हुआ, ये जो भी काम करेगा आपको वर्टिकली में वर्क कर रहा है। टेक्स्ट अलाइनमेंट वो पिछला क्या था, ये है आपको अलाइंग आइटम। पिछला था जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा था, हॉरिजॉन्टल में वर्क कर रहा था, ठीक है। और अलाइंग आइटम जो है वर्टिकली में वर्क कर रहा है आपको। ये क्या किया, कंटेंट, सारा कंटेंट को सेंटर में ला दिया। जस्टिफाई ये अलाइंग आइटम। अब यहाँ पे अगर आप जस्टिफाई कंटेंट ले लेते हैं सेंटर, ये क्या करेगा, इसको सेंटर में लेके जाएगा, आगे सेंटर में। मीन्स अभी आपको क्या हुआ, वर्टिकली भी चला गया सेंटर में, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में, दोनों तरह से हमने उसको सेंटर में सेंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अलाइंग आइटम क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट पे जाएगा। तो ये अब हम एक को हटा देता हूं पहले, नहीं तो वो थोड़ा पता नहीं चलेगा। ओके, सो फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब क्या, ये अलाइंग आइटम जो है कहाँ वर्क कर रहा है, वर्टिकली काम कर रहा है, टॉप टू बॉटम में, इसीलिए ये ऊपर से नीचे तक में ही वर्क करेगा। तो ये क्या हुआ, आपका स्टार्ट में चला गया। नेक्स्ट सेम उसी टाइप से फ्लेक्स एंड, सबसे नीचे आ जाएगा। फ्लेक्स स्ट्रेच, ये क्या करेगा, ये आपको स्ट्रेच कर देगा डेटा को,
जो नॉर्मली जब हम कुछ नहीं अप्लाई किए थे, मतलब कुछ स्टार्टिंग में फ्लेक्स स्ट्रेच नहीं लगा हुआ था, तो ये क्या कर रहा था, जितना बड़ा एरिया इसके पास है उस एरिया में ये स्ट्रेच कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने हाइट को बढ़ा दिया 2000 पिक्सल, आपका ये 2000 पिक्सल तक स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो जितना बड़ा आपको एरिया दीजिएगा उतना में ये स्ट्रेच कर लेगा डेटा को। सो इसे प्रॉपर्टी क्या वर्क किया, अलाइंग आइटम। जब भी आप सीएसएस का नोट बनाइए, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में लिख लीजिए कि अलाइंग आइटम क्या करेगा, जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, ये सब चीज, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो वो था अलाइंग आइटम। नेक्स्ट है आपको अलाइंग आइटम प्रॉपर्टी यूज्ड टू अलाइंग द फ्लेक्स लाइन। मीन्स जब आप कंटेंट, यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा है बहुत ज्यादा है, तो क्या हो रहा है कि आपको कुछ कंटेंट ऊपर है कुछ कंटेंट नीचे है, मीन्स एडजस्ट कर रहा है। सो आते हैं अलाइंग कंटेंट पे। अभी हम लोग जो लिए थे अलाइंग आइटम लिए थे, अब हम लोग जो ले रहे हैं क्या है, अलाइंग कंटेंट को ले रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे थ्योरी का। इन दिस एग्जांपल बी यूज एज 600 पिक्सल हाइट कंटेनर, 600 पिक्सल का कंटेनर है। द हाई कंटेनर विद द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी सेट टू रैप। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स रैप को यूज किया गया जिसका प्रॉपर्टी सेट किया गया रैप टू बेटर डेमोन्स्ट्रेट अलाइंग कंटेनर प्रॉपर्टी। देखिए कुछ केस में क्या होता है ना कि जब तक आप उसका इस एक्शन का, अगर आप एरिया हो गया या स्पेस हो गया, ये सब आप इंक्रीज नहीं करते हैं तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा उसका। ठीक है, तो इसलिए आपको उसका एरिया को, मतलब उसको जो बढ़ाना पड़ेगा, या आउटपुट हो गया, हाइट हो गया, ये सब चीज आपको प्रोवाइड करना होगा ज्यादा मात्रा में, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। सो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो एक एक सेकेंड, हम लोग जो भी ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं, पेरेंट पे लगा रहे हैं या चाइल्ड पे लगा रहे हैं? सबसे ऊपर क्लास क्या है, फ्लेक्स कंटेनर, करेक्ट। ये फ्लेक्स कंटेनर है, ये पूरा प्रॉपर्टी जो लग रहा है ना पेरेंट पे लग रहा है। अगर कभी आपको ये कंफ्यूजन भी हो जाए, सपोज आप भूल भी जाते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें पेरेंट को फ्लेक्स बनाना पड़ता है। करेक्ट, हम लोग फर्स्ट में ही पढ़े हैं उस चीज को कि हमें पेरेंट को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। पेरेंट को फ्लेक्स बनाने का मतलब क्या हो रहा है, चेक कीजिए कि कहाँ पे फ्लेक्स है, दिख रहा है? अगर ये यहाँ पे फ्लेक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट हमारा फ्लेक्स बना हुआ है। समझ में आ गया? तो आप जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये पेरेंट में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट को फ्लेक्स बनाया जा रहा है, और पेरेंट में ही वो सारा प्रॉपर्टी हमारा ऐड हो रहा है। चलिए, तो क्या क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, हाइट दे दिया गया कुछ समझने के लिए, ये ताकि स्पेस हो तभी हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपको फ्लेक्स रैप, ऑलरेडी ये पता है कि ये रैपिंग के लिए होता है जब हमारे पास डेटा ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं अलाइन कंटेंट। सो द स्पेस बिटवीन वैल्यू डिस्प्ले एंड फ्लेक्स लाइन विथ इक्वल स्पेस बिटवीन देम। तो ये किसके लिए, स्पेस। जस्ट अभी हम लोग देखे थे अलाइन आइटम के केस में, इसको क्या कि स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन क्या कर रहा था, हर एक के बीच में स्पेस को, हर एक के बीच में आपको स्पेस है। सबसे नीचे जाइए, यहाँ भी कुछ एलिमेंट है, कितना परसेंट है, 150, 100 कर दीजिए मुझे, 110, सॉरी 100, 100 में फिर तो छोटा हो जाएगा, फिर नहीं दिखेगा, बड़ा ही ले जाइए तब दिखेगा। सो अब क्या हो रहा है, आपको जो कंटेंट ज्यादा है वो स्प्लिट कर देगा, खुद से नीचे में चला जाएगा। और सेकंड आपको क्या है, स्पेस, आपका स्पेस जो है ऑटोमेटिक। ठीक है, सो ये हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेस अराउंड द वैल्यू डिस्प्ले द फ्लेक्स लाइन विथ स्पेस बिफोर। चलिए उतना रहिए, स्पेस अराउंड, ये क्या करेगा, उसके चारों तरफ स्पेस को देखेगा, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा स्पेस को ले आया इसने चारों तरफ में।
सो द स्ट्रेच, फिर आते हैं स्ट्रेच। तो स्ट्रेच जैसे पहले काम किया था सेम, ये क्या करेगा, पूरा स्ट्रेच कर देगा, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, जितना स्पेस है सब में लेके चलेगा स्ट्रेच को, मीन्स उतना स्पेस तक ये स्ट्रेच कर ले, स्ट्रेच हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट। तो क्या होगा, जहां से फ्लेक्स स्टार्ट हुआ है वहां पे आके कब बैठ जाएगा ये, समझ गए। तो इस टाइप से हमने क्या किया, अलाइन कंटेंट को देख लिया। और ये ओवरफ्लो वगैरह क्या है, जब तक आप ओवरफ्लो सेट कीजिएगा तभी तो आप डेटा देख पाइएगा, तो वही सब चीज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट सेंटरिंग। अगर आपको परफेक्टली सेंटर में लाना है तो कैसे होगा। सो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, जिसे अभी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सेंटर में लाने के लिए, टॉप 50%, लेफ्ट 50, कुछ ऐसा यूज कर सकते थे, या टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हुआ, मीन्स वो सब यूज करके जो ही प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, द सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन जो है, सेट बोथ जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइनमेंट आइटम प्रॉपर्टी टू द सेंटर। जस्ट अभी हम लोग ऊपर किए थे इस चीज को, शायद जस्ट 2 सीट पहले कहीं पे था, उसको हमने कमेंट मारा था। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक और था टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर भी था लगता है, हाँ ये रहा, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये दोनों को आप कहिए, आपका ऑटोमेटिक जो अलाइनमेंट सेंटर है वो परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइनमेंट आइटम सेंटर, ये दोनों को आपको सेंटर में कर दीजिए, आपका पूरा जो सेंटर जिसे कहते हैं ना एग्जैक्ट सेंटर आना, वो आ जाएगा। नेक्स्ट है CSS फ्लेक्स आइटम। सो अब आते हैं किस पे, ये जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग देखे चाइल्ड पे देखें, अब देखते हैं पेरेंट, ये सॉरी पेरेंट पे हम लोग देखें, अब हम लोग देखते हैं चाइल्ड पे। सो द चाइल्ड आइटम एलिमेंट, सो द डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ ए फ्लेक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम द फ्लेक्सिबल आइटम। ऑटोमेटिक क्या होगा, ये फ्लेक्स में बन जाएगा। सो इस पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है द फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी। तो फ्लेक्स आइटम मतलब आइटम, इट मीन्स क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड आ रहा है उसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले किसका देख रहे थे, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी हम लोग सारा देखें। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपको ऑर्डर, देखते हैं। सो द ऑर्डर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द फ्लेक्स आइटम। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, क्या हो रहा है, रैंडम ऑर्डर में आ रहा है ना। सो द फर्स्ट फ्लेक्स आइटम ऑफ द कोड डज नॉट हैव अपीयर एज द फर्स्ट आइटम इन द लेआउट। आप फर्स्ट जो अगर है, आप कोड पे अगर जाइए तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, 1 पहले है, 2 सेकंड में है, थर्ड फोर्थ, बीच में जो ये 1 2 3 4 जो बीच वाला लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिखा हुआ है, दिख रहा है। ओके, मैं ये कोड कॉपी करता हूँ तब हम लोग आएगा। किन्नी को नींद आ रहा है क्या, आ रहा है तो बताइए, चाय कॉफी इंतजाम किया जाएगा। नीरज नींद आ रहा है, नीरज वो आप बिलिंग वाला बनाए क्या, ये है भी कि नहीं है, खाली भाई हम ही हैं क्या। यस सर, बनाया है। हाँ। और कोई नहीं बना रहे हैं क्या, पता नहीं। बनाऊंगा सर, ये आज कंप्लीट हो जाएगा, ये मैगजीन में बनाना है तो। चलिए सही है। बोल रहे हैं क्या, स्कूटर बचा है इसका सब हो गया। क्या बचा, स्कूटर बचा, स्कूटर सर, स्कूटर को लगा स्कूटर बचा बोल रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग चाइल्ड आइटम पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग पेरेंट आइटम पे नहीं जा रहे हैं कोई भी चीज। सो फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स स्ट्रेच, ये सब तो हो गया। आते हैं चाइल्ड पे। सो चाइल्ड में आप देखिए तो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ है, बैकग्राउंड, कलर, मार्जिन, विड्थ, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कुछ भी हमारा फ्लेक्स रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब नॉर्मल प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं। बट मैटर यहाँ कर रहा है क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस अगर देखिए तो 1 2 3 4 है,
बट आपका जो आउटपुट आ रहा है ना 4 1 3 2 कुछ भी रैंडमली आ रहा है, एक्चुअली वो आ कैसे रहा है? तो स्टाइल में आप यहाँ देख सकते हैं क्या लगाया हुआ है, ऑर्डर, और ऑर्डर में क्या डाला हुआ है 3 2 4 1। तो जो ऑर्डर डाला हुआ है ना वही ऑर्डर आपको आउटपुट में आ रहा है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 1 किसके पास है, 4 के पास, तो सबसे पहले 4 आया। 2 किसके पास है, 2 के पास 2 आया। 3 किसके पास है, 3 का ऑर्डर 1 के पास 1 आ रहा है। एंड 4 किसके पास है, इसके पास है, तो 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो ऑर्डर वैल्यू है इसको अगर हम चाहें तो जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से रैंडम, मतलब अभी तो यहाँ पे हार्ड कोडेड है, बट अगर आप चाहें तो जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से इसे हम रैंडम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं 3 2 4 1। जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट में लूपिंग पढ़ेंगे ना तो हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे इतना लिखे हैं कोड, इसको हम डायनेमिकली अगर जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से लिखें तो वहाँ पे लाइक 4 लाइन हम कह सकते हैं कि लिखना पड़ेगा कोड, फॉर लूप लगाना होगा, लूपिंग वगैरह करना होगा। बट वही चीज अगर आप एंगुलर में कर रहे हैं तो वो जो 4 लाइन का कोड है वो कितना में आ जाएगा, मोस्टली मुझे लगता है 2 लाइन में आ जाएगा। एक नॉर्मल फॉर लूप लगेगा, पूरा डेटा आपका लूप हो जाएगा। उसके बाद बेनिफिट क्या होगा उसमें, ये जो आप 1 2 4 जो ऑर्डर दे रहे हैं ये आप रैंडमली दे सकते हैं, मीन्स वो आपको रैंडम आ जाएगा, आपको आपको खुद ही नहीं पता है कि नेक्स्ट में आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि वो रैंडमली जनरेट होगा। तो ये सीन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिसके हेल्प से हमारा ऑर्डर जो है ऑटोमेटिक, मतलब जो भी है रैंडमली हम लोग जो पास कर रहे हैं वैल्यू उसके हेल्प उसके अनुसार हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है द फ्लेक्स ग्रुप प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप देख रहे हैं 1 2, ठीक है, सर बट 3 जो, जो हाँ हाँ वो हाँ ऑर्डर में बोलिए। क्या क्या यूज किया वो नहीं देखे सर, ऑर्डर क्लास में ऑर्डर है क्लास कि में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी कैसे ऑर्डर, आया? ऑर्डर क्लास नहीं है ना, स्टाइल में ऑर्डर दिया हुआ है, क्लास कहाँ है। अच्छा स्टाइल में दिया हुआ है। हाँ, सीएसएस लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा है ओके ना, यहाँ पे कोई, यहाँ सीएसएस में हमारे पास कुछ नहीं है। ओके सर, ये तो पेरेंट का तो सीएसएस हम देख ही लिए कि पेरेंट तो हमें लगाना ही पड़ेगा, समझ सर। बट चाइल्ड में कुछ नहीं है, कुछ और समझ। ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 है 2 है, बट 3 के केस में जब आप जा रहे हैं आपके पास यहाँ देखिए 3 के बाद बहुत स्पेस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो स्पेस बच गया सबको फिल कर दीजिए, ठीक है। तो फिल करने के लिए फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या डाला हुआ है, स्टाइल ग्रो में 1 1 एंड यहाँ पे 8 है, करेक्ट। ये क्या करेगा, ये अपना एक वैल्यू लेगा, मीन्स आप परसेंटेज लेके चलिए या जो भी अगर कहते हैं हम उसे, तो उतना सेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 1 ही ले लेते थे, तो 1 ये लेगा एरिया, नेक्स्ट वाला भी 1 लेगा, और नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है 8 ले रहा है, ठीक है। मीन जितना इसको दीजिएगा उतना ले लेगा। इट मीन्स क्या हो रहा है, हम फ्लेक्स को अपने अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे सपोज इसी काम को करना अगर रहता सीएसएस के हेल्प से, फ्लेक्स इग्नोर करते हैं तो क्या करते हैं, हमें वहां पे हाइट एंड विड्थ जो भी है विड्थ बढ़ाना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है, बट आप उसी काम को फ्लेक्स ग्रो के हेल्प से इजिली कर सकते हैं। तो कोई आपको हाइट विड्थ का बढ़ाने का झंझट नहीं है, समझ में आया। सो हम वो काम को कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके हेल्प से क्या होगा, फ्लेक्स हमारा ग्रो कर जाएगा। फ्लेक्स मीन्स कौन, फ्लेक्स आइटम, आइटम मीन्स जो अंदर पेरेंट के अंदर जो हमारा कंटेंट अंदर जो आइटम है वो। नेक्स्ट है फ्लेक्स श्रिंक। श्रिंक में क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और 3, ठीक है। 3 क्या हो रहा है, वैल्यू हमारा जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी सबके सब श्रिंक है, लेकिन 3 जो है नॉर्मल में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डिफॉल्ट ले रहा है। So the friends, sorry, the flex shrink property specify how much a flex item will shrink relative to the rest of the flex item. किसको किसको आपको shrink करवाना है? So the value must be a number. Default value is 0. Default value क्या होता है? Sorry, 1. Default value जो है हमारा 1 होता है. So यहाँ पे आपको दिख रहा है align item. क्या लगा हुआ है? Align item stretch. स्ट्रेच करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेच जब किए तो जितना स्पेस है उसके अनुसार वो स्ट्रेच कर लिया, उसके अंदर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेच ही है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कोड में, कोड में कुछ है क्या, सो कोड में है क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए, तो बाय डिफॉल्ट सबके सब क्या हो रहा है, सब श्रिंक हो गया क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन
बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग का 1 पर था ना लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 1, ठीक है। सो अगर हमें किसी को श्रिंक नहीं करवाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रिंक को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं 0। जब आप 0 दीजिएगा वो श्रिंक नहीं करेगा, वो नॉर्मल में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 4 5 6 7 8 9 10 सब श्रिंक है, लेकिन 3 आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया 0। जब 0 दीजिएगा वो श्रिंक नहीं करेगा। डू नॉट लेट द थर्ड फ्लेक्स आइटम श्रिंक एज सच एज as much as the other flex item। मीन जितना अदर जो आइटम है वो श्रिंक कर रहा है, हम थर्ड वाले आइटम को श्रिंक करने नहीं दे रहे हैं। कैसे हम उसको रोक रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्स श्रिंक 0। क्लियर? सो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ सेम चीज है डिजाइन, तो कैसे कर सकते हैं उसको, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, वर्टिकल। तो आपको ऑलरेडी हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे। क्या था वो? फ्लेक्स डायरेक्शन, रो या कॉलम चेंज कर सकते थे। तो वही चीज है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू क्रिएट 2 कॉलम लेआउट फॉर मोस्ट स्क्रीन साइज, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेनू बार आप क्रिएट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस टाइप से जब हम क्लिक करें नेक्स्ट में तो आप इस टाइप से कन्वर्ट कर लें, आप उसको फ्लेक्स से कर सकते हैं। स्क्रीन आइटम एंड 1 कॉलम लेआउट फॉर स्मॉल स्क्रीन साइज, मीन्स स्मॉल स्क्रीन जब हो तो वो एक कॉलम में आ जाए, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, आइदर रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। तो एक काम कर सकते हैं ऐसे केस में, एक मीडिया क्वेरी लेंगे, मीन्स हम मीडिया क्वेरी की हेल्प से कर सकते हैं, इजी रहेगा। जब लैपटॉप स्क्रीन आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल, और मोबाइल जब आ गया तो टॉप टू बॉटम मीन्स वर्टिकल, ठीक है। देखते हैं कोड पे क्या है। तो आप फ्लेक्स कंटेनर पे देखिए क्या लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो है फ्लेक्स का डायरेक्शन रो है, रो मतलब लेफ्ट टू राइट। लेकिन अब नीचे आइए, मीडिया क्वेरी, ये क्या किया, @मीडिया बिड्थ आ गया 800 पिक्सल। जब आपका स्क्रीन बिड्थ 800 पिक्सल आ रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, कॉलम में आ गया। समझ में आया? तो ये क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक आपका डिजाइन को चेंज कर देगा जिस जहां पे जैसा चाहिए। अनदर वे टू चेंज द परसेंटेज ऑफ द फ्लेक्स वैल्यू, सेम चीज को हम लोग परसेंटेज से कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। तो क्या है, फ्लेक्स से रैप, हमने यहाँ पे रैपिंग कर दिया। फ्लेक्स रैप करने के बाद नीचे आइए, कंटेनर पे देखिए, फ्लेक्स इक्वल टू 100%। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे ऑलरेडी इसको यूज करके, वही चीज है। स्क्रीन साइज पे हम फ्लेक्स जो साइज है उसी को चेंज कर दीजिए। तो दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, या तो हम क्या था, डायरेक्शन, या तो हम डायरेक्शन को चेंज कर दें या फिर फ्लेक्स को हम लोग चेंज कर दें वैल्यू को, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों चलेगा। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी यूजिंग द फ्लेक्स बॉक्स। अब तो इजी है। और एक चीज हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप कोई भी चीज फ्लेक्स के हेल्प से कर रहे हैं, ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ रहा है आपको, लाइक पैडिंग, मार्जिन, ये सब चीज फिटिंग नहीं करना पड़ रहा है। जस्ट क्या है, पेरेंट को फ्लेक्स बनाइए और उसके बाद रैपिंग दे दीजिए वहां पे प्रॉपर्टी, फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप, डेटा आपका एक्स्ट्रा होने पे रैपिंग कर लेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी देना आप कर दीजिए, फिर तो नॉर्मल ही चल रहा है, कोई वैसा खास तो हो नहीं रहा है उसमें, ठीक है। सो पहले गैलरी का यहाँ पे देखते हैं आउटपुट है क्या, नहीं आउटपुट, ओके। चलिए CSS देखते हैं, फ्लेक्स का देखते हैं क्या चल रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या है, मीडिया के अनुसार मीन्स स्क्रीन के अनुसार क्या हो रहा है, मीडिया बिट्स में हमारा मैक्स बिट्स पास कर दिए 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल में हमने फ्लेक्स को चेंज कर दिया 100% और मैक्स बिट आ गया 100%। नीचे आइए, यहाँ पे देखते हैं तो रिस्पॉन्सिव लेआउट मेक्स द 2 कॉलम स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, दोनों को हम कॉलम टू कॉलम ले आए। मीडिया ये हो गया, और यहाँ पे फ्लेक्स इक्वल टू 50% और 50% यहाँ पे जो भी स्क्रीन साइज है, ठीक है। तो ये रहा है आपको रो, डिस्प्ले, फ्लेक्स एंड रैप, ये दोनों हम लोग यूज कर लेंगे। और बाय डिफॉल्ट जब हमारा कोई नहीं मैच कर रहा है कंडीशन, तो फ्लेक्स 25 मैक्स बिट भी दे दिया गया, तो दोनों कंडीशन ये हो गया। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट नहीं करूंगा, नहीं तो हमें ये पाथ पूरा इमेज को डालना पड़ेगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट एनीवे वो वर्क कर जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना कोड लिखना पड़ा, जस्ट 2 लाइन का तो कोड ही है यहाँ पे।
फ्लेक्स 100% और मैक्स विड्थ 100%, दैट्स इट। और स्टार्टिंग में आपको फ्लेक्स को क्रिएट करना पड़ रहा है। तो अगर हम ये देखें, ऑब्जर्व करें कोडिंग वाइज, तो फ्लेक्स के हेल्प से एंड मीडिया क्वेरी के हेल्प से कोड हमें बहुत ईजी हो जा रहा है। अब फ्लेक्स के हेल्प से क्या हो रहा है, एक वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, आप उसको देखिए। कोडिंग पे जाते हैं हम लोग। सो बॉडी में नहीं, हेडर में देखिए। सो हेडर में कुछ है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट तो नेविगेशन बार, इसको रेस्पॉन्सिव किया जा रहा है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी लिया गया फ्लेक्स से, ठीक है। अब नेविगेशन बार जब चेंज होगा तो डिवाइस के अनुसार हमें चेंज भी करना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे नहीं है। फिर कंटेनर किसी को रो बनाया गया है, फिर साइड वाला आइटम जो आएगा उसको किया गया फ्लेक्स 30%, पैडिंग वगैरह मेन आइटम को किया हुआ है। फिर इमेज है उसको मतलब जो भी लिया गया, फुटर सेक्शन है। फिर मीडिया के अनुसार जो जो सेक्शन को करना है, यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, तो रिस्पॉन्सिव इजीली बन गया, ठीक है। सो ये चीज है, इसको मैं रन कर दे सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई इमेज नहीं है। मुझे लगता है कि अब फ्लेक्स समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सर समझ में तो आया, दिक्कत ये है हाँ, सबसे पहले सीखे थे मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट, ओके। मार्जिन लेफ्ट सीखे थे तो पता चला यही यूज करना है। फिर लाइन हाइट सीखे तो नहीं, अब ये यूज करना है। फिर मैंने फ्लोट सीखा तो वो सब यूज नहीं, फ्लोट यूज करना है। फिर सीखे ये क्या बोलते हैं मीडिया क्वेरी, तो ये यूज करना है। फिर अभी मैंने सीखा, अच्छा से सीखा डिस्प्ले, तो अब लग रहा है यही यूज करना है। जितना आगे सीखते जा रहा हूँ लग रहा है वही यूज करना पड़ रहा है। देखिए केस अब बताता हूँ क्या है। आप जितना आगे जा रहे हैं, आपको वहां पे जो भी टॉपिक मिलेगा ना, वो आपको हेल्प करता है रेस्पॉन्सिव बनाने में। सबसे बड़ा मेन चीज ये है। आप अगर देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी ये पैडिंग एंड मार्जिन, ये दो चीज को तो आप इग्नोर करके चलिए कभी भी, क्योंकि वो आपके वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव नहीं बना सकता है, वो बहुत ज्यादा ब्रेक करेगा। लेफ्ट राइट भी सर देख हाँ, सकता है। मतलब वही लेफ्ट राइट और ये जो भी चीजें हैं, पोजीशन का ये यूज सब करके बहुत ज्यादा ये ब्रेक करेगा। बना लिए तो हैं सर, अब क्या करेंगे, उसको बना चुके हैं उसी से वो उसके लिए चलाने ठीक का है। दिक्कत। देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे, क्योंकि आप कोर्स पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे पढ़िएगा वैसे वैसे टॉपिक मिलेगा ना, तो टॉपिक जैसे मिल रहा है हम उस चीज को यूज करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम हमें ये पैडिंग मार्जिन को जान रहे हैं तो वो यूजलेस हो गया, नहीं। बहुत जगह है कि वो पैडिंग मार्जिन आपको काम करेगा, तो उस केस में हमको क्या होगा, पैडिंग मार्जिन हमारा हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे अगर हम कोई भी चीज का हमें आइडिया मिल रहा है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी वो आइडिया मिलेगा। अगर ये फ्लेक्स है, आप 2 दिन नहीं पढ़िए, पूरे गायब हो जाएगा। और इंटरव्यू में बैठिए, सोना नींद ला देगा वो इंटरव्यूअर आपको। फ्लेक्स वगैरह और ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, पूछता ही पूछता है, सीएसएस में खास करके। तो खास करके ये सब चीज का प्रैक्टिस आप खुद से पढ़ के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस तभी होगा जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अगर प्रोजेक्ट पे नहीं करते हैं, इसका कभी आप यूज ही नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए हम असाइनमेंट देंगे आपको, आप क्या कीजिएगा, उसको पैडिंग मार्जिन करके बना दीजिएगा, आपका बन जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि हमें तो आउटपुट लाने से मतलब था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सारा सेक्शन एक बना हुआ है वेबसाइट का। अब आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक डिजाइन है, नीचे फुटर हो गया, हर एक चीज है। जाइए इंस्पेक्ट कीजिए, देखते हैं रिस्पॉन्सिव आ रहा है क्या। चलिए सैमसंग गैलेक्सी लेते हैं, आ गया पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव। ऊपर आपका बैनर एक तरह से हो गया माई वेबसाइट जहाँ है, नीचे ये लिंक आ गया, अबाउट मी, इमेज, नीचे ये सेक्शन रहा, टाइटल, हेडिंग, हेडिंग आ गया, ठीक है। सो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि क्या है। तो इसका कोड आप अगर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोडिंग, मान लीजिए कैसे हम कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक वेबसाइट ही बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है लेफ्ट का सेक्शन, एंड ये राइट का जो सेक्शन है, करेक्ट, ये राइट में सेक्शन जो है, आप देख सकते हैं दोनों साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कभी भी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो ये हमें प्रायोरिटी रखना चाहिए कि स्पेस को हम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास स्पेस कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हो सके स्पेस को यूटिलाइज करके चलें। ये नहीं कि लेफ्ट साइड में पूरा एक मतलब उधर छोड़ दिए, लेफ्ट साइड में भी छोड़ दिए, राइट भी छोड़ दिए, पूरा दोनों जगह स्पेस छोड़े हुए हैं।
तो फिर आपने पूरा का पूरा तो वेस्ट ही कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है, तो इस टाइप से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड में अगर देखा जाए तो कोड में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये केयर किया गया है कि हम रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएं डिजाइन को। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये हुआ कि अगर ये दो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन को उस टाइप से रखा गया है कि ताकि वो कोड हमारा ब्रेक ना करे डिवाइस जब चेंज हो तो। ठीक है, सो फ्लेक्स में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट क्या है कि जब भी फ्लेक्स हम बना रहे हैं, हमें पेरेंट को पहले फ्लेक्स बनाना होगा। पेरेंट को अगर आप फ्लेक्स बना रहे हैं, कंटेनर ऑटोमेटिक आपका फ्लेक्स हो जाएगा चाइल्ड लेवल पे जो है, और बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी था। एंड सेकंड, फ्लेक्स अकेला कुछ नहीं कर रहा है, मीडिया क्वेरी उसके साथ पार्टिसिपेट करके कर रहा है। आप यहाँ भी कोड देख सकते हैं, फ्लेक्स की हेल्प से हो गया। यहाँ पे मीडिया क्वेरी 2 लाइन का कोड, सारा खेल जो है ये मीडिया क्वेरी ही कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्क्रीन साइज के अनुसार आपको फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। अब जाइए और इसको रेस्पॉन्सिव कीजिए, चेक कीजिए, देखते हैं कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ ब्रेक या नहीं। नहीं हुआ क्या? नहीं, ब्रेक तो नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि स्क्रीन 1 सेकेंड, कॉलम 700 पिक्सल 700 है। ओके, लेने दीजिए 700 पे 7। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं ये जितना भी स्क्रीन ये होता जा मतलब रिड्यूस करते जा रहा है, क्या हो रहा है, आपको ये पूरा सिंक कर दे रहा है, कंप्रेस कर दे रहा है वेबसाइट को। करेक्ट, जो हमारा सही नहीं लग रहा है। जबकि जब इतना बड़ा जब स्क्रीन आया, जब स्क्रीन रिड्यूस हो गया, तो हम लेफ्ट साइड वाले को ऊपर, ऊपर जो राइट में है उसे नीचे, इस टाइप से क्यों ना अरेंज कर दे, मीन्स एक स्टैक की तरह, वो ज्यादा सही रहेगा ना। इसीलिए तो यहाँ पे वो दिया हुआ था 600 700 पे मीडिया क्वेरी लगाकर 700 पे आ गया आपका ऑटोमेटिक, ये ब्रेक मतलब जो रिस्पॉन्सिव था वो हो गया। समझ गए? तो ये चीज हमें, इसको एटलीस्ट जो है ना फ्लेक्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार ये जो लास्ट का जो कोड डाला हुआ है वेबसाइट वाला, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए कि कैसे बनता है। एक बार ये पूरा डिजाइन का आउटपुट जो है इसको बना के देखिए, ट्राई कीजिए। कंटेंट आप कुछ भी लिखिए, कंटेंट से मैटर नहीं करता है। ये टाइटल हेडिंग है, सिर्फ हेडिंग लिख दीजिए। इमेज का जो सेक्शन है, इमेज का सेक्शन लगाइए या इमेज ही लगा दीजिए, चलेगा, कोई इशू नहीं। बट मेन जो हमें देखना है ये कि डिजाइन हमारा जो है स्टैक में आना चाहिए, डिवाइस के अनुसार हमारा वैरी हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जब हम डिवाइस चेंज कर रहे हैं हमारा वैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार जब अगर आप बनाते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कोड चेंज कहाँ कहाँ करना है।